اگر ماں سے کہا جائے ماں تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو تو کیا یہ بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہنے لگے کہ نہیں، جب تک ان کے اندر طاقت رہے گی، جب تک وہ لڑ سکے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے، وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ وہ اپنے بچے پر اتنا بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ماں آخر اپنے بچے کو کیسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے لوگوں، جب دنیا میں کہ معمولی سی بچہ سے محبت اتنی ماں کر رہی ہے، لیکن سنو، اللہ جو اپنے رحم و کرم سے دنیا میں اتنے انسانوں پر رحم کرتا ہے اور اپنے رحمت کے حصوں کو انسانوں کے اندر بانٹتا ہے، وہ اللہ ارحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے منی بعبادی، اپنے بندوں سے، میرے بھائیوں سے، ماں سے بھی زیادہ۔ جو ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، یعنی ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بندوں پر مہربان ہے۔ دنیا میں کہ ماں اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کو پہچانے کہ اللہ کون ہے اور اللہ اور ہمارے درمیان کیا نسبت ہے، رحمان کے اندر اور اس کے بندے کے اندر کیا نسبت ہے۔ جب ایک ماں دنیا میں معمولی سی بچہ پر، اپنے بچہ پر اتنا بڑا مہربان ہے، تو اس ماں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اللہ ارحم، اللہ تعالیٰ اور زیادہ رحم کرنے والا ہے بے عباد ہی، اپنے بندوں پر۔ جنگی قیدیوں کے اندر جب وہ بچہ ملا، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ اس عورت کو اگر حکم دیا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو تو کیا یہ آگ میں ڈالے گی؟ نہیں۔ جب معمولی سی ماں، معمولی سی بچہ، معمولی سا بچہ، আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, যদি কারো একটা মোবাইল হারিয়ে থাকে, সেই মোবাইলটা এখন স্টেজে রাখা আছে টেবিলে, কোম্পানি আছে তুর্ক কোম্পানি, নিয়ে যেতে পারে। تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں کوئی ناستک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بے ایمان ہے، کوئی ایماندار ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی بے نمازی، تو کیا اللہ تعالیٰ سب بندوں پر مہربان ہے؟ بندہ تو سب ہے بھائی، گناہ کرنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، نیکی کے کام انجام دینے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سب بندوں پر مہربان ہے، سب بندوں کے ساتھ رحم کرتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، دنیا میں ہر ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی ہے۔ بیٹا نالائق نکلا، بیٹا چور نکلا، بیٹا ڈکیت نکلا، بیٹا قاتل نکلا، اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو مار دیا، زمین کے چکر میں، جائیداد کے چکر میں خون خرابہ کر دیا۔ اگر ظاہری طور پر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوگی تو اپنے اس بچے سے محبت نہیں کرے گی اور اس بچے کو وہ سزا دے گی۔ دنیا میں ہر ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی ہے، اسی طرح اللہ بھی ہر بندے پر مہربان نہیں ہے۔ وہی بندہ جو دنیا میں پستی کے شکار، وہی بندہ جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں، دنیا میں غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، جب زمین میں چلتے تو آہستہ چلتے، رونتے ہوئے نہیں، سینہ تان کر نہیں، گال پھلا کر نہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ اللہ کے پاس 100 رحمت ہے، 100 رحمت کے حصے، اور ان رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ زمین میں انسان اور حیوانوں کو دے دیا ہے، جنوں کے اندر دے دیا ہے۔ اسی لیے تو ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر اتنا مہربان ہے
इंसान अगर किसी के ऊपर रहम करता है वो अल्लाह की रहमत की बदौलत करता है। इंसान अगर किसी के ऊपर शफकत करता है तो अल्लाह ताला के 100 रहमतों में से जो एक हिस्सा जमीन पर अल्लाह ताला ने उतारा है उसी की बदौलत इंसान एक दूसरे ऊपर रहम करता है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम अल्लाह को नहीं पहचान पाए, हम अल्लाह को भूल गए। रहमान के अंदर और बंदे के दरमियान जो रिश्ता होता है, बंदे के अंदर और रहमत के दरमियान जो निस्बत होता है, हमने उस चीज को फरामोश कर दिया है और हमने अल्लाह को भूल बैठा है। इसलिए हमारी और आपकी पहचान ये हो गई है, इंसान गुनाह करता है, अगर कहा जाए गुनाह क्यों करते हो, कहने लगता है कि भाई अल्लाह के हुक्म के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हम गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह ही ना करा रहा है, चोरी कर रहे हैं तो अल्लाह ही करा रहा है। नहीं, रहमान के बंदे हुए हैं जो अपने मालिक पर आंच नहीं आने देते हैं। यानी अगर आप गुनाह करते हैं, आपसे गुनाह सरजद हो जाता है, बशरी तकाज़ा की बुनियाद पर आपसे अगर गलती हो जाती है, आपसे अगर खताएं हो जाती है, तो आपको उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं करना है, बल्कि आपको ये कहना है कि ये मेरी अक्ल का कसूर है, शैतान ने मुझे भटका दिया है। मेरे भाइयों, और जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी निस्बत मालिक की तरफ होनी चाहिए, तब मालिक अपने बंदे से प्यार करेगा और बंदे और मालिक के दरमियान जो रिश्ता होगा वो पक्का होगा। लेकिन हम अगर ये कहें कि गुनाह अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, नमाज छोड़े अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों अच्छी चीजों की निस्बत अल्लाह की तरफ करनी है और बुरी चीजों की निस्बत शैतान की तरफ करनी है। वो अपने कम अक्ली और नाकिस दिमाग की तरफ करनी है, तब मालिक और बंदे के दरमियान निस्बत पक्का होगा। आपको मैं एक मिसाल दूं, सुल्तान महमूद गजनबी बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, नेक बादशाह थे। उनका एक गुलाम था जिनका नाम अयाज था। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने यह शेर लिखा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। मालिक और गुलाम एक ही सफ में खड़े हो जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाइयों। हम अगर पैसे वाले हो जाते हैं, कोई अगर हमसे छोटा है, उनके पास पैसा उतना नहीं है, तो हम उन्हें हकारत भरी निगाह से देखते हैं, हम उन्हें छोटापन दिखाते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम बड़े हैं, वो हमसे छोटे हैं। लेकिन मालिक और गुलाम अगर एक जगह पे खड़े हो जाए तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो उन्होंने अपने गुलाम को हमेशा अपने साथ लेना शुरू कर दिया। मसलन बाजार जाए तो अपने गुलाम के साथ, खाना खाए तो गुलाम के साथ, नमाज पढ़े तो अपने गुलाम के साथ, जंगलों में जाए तो अपने गुलाम के साथ, बाजार जाए तो अपने गुलाम के साथ। उनका और भी वजीर था और भी गुलाम था, सबको हसद हो गया। और जाहिर सी बात है, जो साहिब नेमत है, किसी इंसान के पास अगर किसी तरह की नेमत अल्लाह ने दे दी है तो उस इंसान पर लोग हसद करना शुरू कर देता है। ये अयाज बेचारा, ये भी एक गुलाम था। जब मालिक के साथ इनका रहन सहन शुरू हो गया तो और वजीरों को इन पर हसद हो गया और कहने लगे, बादशाह हम भी तो आपके गुलाम हैं, आप सबसे ज्यादा अयाज से क्यों प्यार करते हैं? तो अयाज और महमूद गजनबी का जो प्यार था वो किस सिलसिले में था, इस बारे में मैं 3 वाक़या आपके सामने जिक्र करूंगा। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनबी ने दरबार लगाया और सारे वजीरों को बुलाया और एक किस्म का फल आता है कड़वा फल लाया और फल लाने के बाद सारे वजीरों को थमा दिया। फला वजीर तुम ये ले लो, फला वजीर तुम ये ले लो, फला वजीर तुम ये ले लो और खाना शुरू कर दो। सारे वजीरों ने एक एक फल लिया और खाना शुरू किया। जैसे ही खाना शुरू किया तो कड़वा महसूस हुआ। कहने लगे क्या बात, ऐसे करके फेंक दिए। लेकिन उनका एक वजीर जिनका नाम अयाज था वो खाना शुरू कर दिया और पूरा कड़वा फल खा लिया। बादशाह मुस्कुराने लगे, आया अयाज, जब सारे वजीरों ने कड़वा फल फेंक दिया तो तुमने क्यों खाया? सारे वजीरों ने कड़वा समझकर फल फेंक दिया तो तुमने क्यों खाया? आया अयाज, क्या तुमको कड़वा नहीं लगा?
अयाज कह रहे हैं कि ओ मेरे मालिक सुल्तान गजनबी, मुझे फल तो कड़वा लगा लेकिन मैंने उसको फिर भी खा लिया। क्यों खाया जानते हो? मैंने उसको इसलिए खाया क्योंकि जिंदगी भर आपने मुझे अच्छा अच्छा फल खिलाया, जिंदगी भर मुझे आपने अच्छा अच्छा फल खिलाया, आपने मुझे मीठा मीठा फल खिलाया, पक्का पक्का फल खिलाया, और हम सब ने उसको खा लिया। आज आपने कड़वा फल दिया तो उसको भी हमने खा लिया, इसलिए कि मैं ये जानता हूं कि कभी अच्छा फल मिलेगा, कभी पक्का फल मिलेगा, कभी मीठा फल मिलेगा, कभी कच्चा फल मिलेगा। अगर पक्का फल मिले फिर भी अपने मालिक का शुक्रिया अदा करूंगा, और कच्चा फल मिले फिर भी अपने मालिक का शुक्रिया अदा करूंगा। ये जवाब सुनना था, सारे वजीर खामोश हो गए। जवाब देखिए मेरे भाइयों, वो ये कह रहा है कि अगर मान के चलिए जिंदगी में आपने बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया, बहुत पक्का पक्का फल खिलाया, मीठा मीठा फल खिलाया, और आज अगर कड़वा फल आपने खिला ही दिया तो हम आपकी नाशुक्री क्यों करेंगे? मुसलमानों, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान पर अगर मुसीबतें आ जाएं तो हम अल्लाह को नहीं बोल सकते हैं। हम अपने अक्ल का मातम तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह से ये नहीं कह सकते कि हमारी किस्मत खराब हो गई, किस्मत फूट गई। इंसान को कभी अच्छाई तो कभी बुराई, इंसान को कभी अच्छी चीजें लायक होगी तो कभी बुरी चीजें भी लायक होगी। और अगर आपके पास अभी खुशहाली है, इतना याद रखिएगा कभी तंगहाली भी, आप तंग भी पड़ जाएंगे। आपके पास वो बुरा वक्त भी आएगा, और बुरा वक्त है तो कभी अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर अगर वो अच्छा खाना खाए, जिंदगी भर अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन अल्लाह ताला अगर उनकी आजमाइश करना चाहे, उनका इम्तिहान लेना चाहे, तो अल्लाह की वो नाशुक्री करने लगते हैं और कहते हैं अल्लाह ने हमारे घर में कभी अच्छा खाना दिया ही नहीं। पता नहीं अल्लाह हम ही को देख पाता है, दुनिया में किसी इंसान को बीमार होती ही नहीं है, सिर्फ हम ही को बीमारी लायक होती है।